بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ آج ہم جو ناول پڑھیں گے وہ ہے تم مجھے قبول ہو۔ آسیہ برکت کا یہ ناول ہے اور یہ اسی سال جنوری 2023 کے ہنا کے شمارے میں یہ شائع ہوا ہے۔ میں نے بھی ابھی تک نہیں پڑھا، سوچا تھا پڑھوں گی تو آپ کے ساتھ پڑھوں گی، آپ سنیے گا، میں پڑھوں گی۔ مجھے نہیں پتہ یہ کس چیز پہ بیسڈ ہے اسٹوری اس کی، جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے پتہ چلتا جائے گا۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تم مجھے قبول ہو بائے آسیہ برکت۔ جب میں تھک ہار کے گھر پہنچی تو امی کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ انہیں اس قدر خوش دیکھ کر میری ساری تھکن غائب ہو چکی تھی۔ صوفے پر بیٹھتے ہی میں نے ان کی خوشی کی وجہ پوچھ لی۔ کیا بات ہے امی، آج آپ بہت خوش نظر آ رہی ہیں؟ دانین، میری آصفہ سے بات ہوئی ہے، کل باسم آ رہا ہے۔ کیوں، خالہ نے باسم کو گھر سے نکال دیا؟ میں بے اختیار بولی تھی۔ مجھے انتہائی بیزاری ہو رہی تھی، باسم کے آنے کا سن کر میرا موڈ آف ہو چکا تھا۔ اللہ نہ کرے وہ تو اس کی جاب یہاں لگ گئی ہے نا، کمپنی کی طرف سے گھر بھی ملے گا، پر وہ ملنے میں کم از کم 1-2 ماہ لگ جائیں گے۔ آصفہ کہہ رہی تھی تب تک باسم کسی ہوٹل میں رہ لے گا۔ میں نے تو صاف منع کر دیا، بھائی جب خالہ کا گھر ہے تو وہ کسی ہوٹل میں کیوں جائے؟ میں نے اسے یہاں رہنے کو کہا ہے۔ امی بولتے چلی جا رہی تھی۔ امی، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں نے شکایتی نظروں سے امی کو دیکھا۔ کیوں بھائی، یہ اس کی خالہ کا گھر ہے اور آصفہ سے تمہارے رشتے کی بات بھی کی ہے، اس بیچ تم دونوں ایک دوسرے کو جان لینا۔ امی کی خوشی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ میں جھنجھلا کر صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا مطلب ہے ایک دوسرے کو جان لینا؟ جو آپ سوچ رہی ہیں نا وہ کبھی نہیں ہوگا۔ باسم میرا دشمن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میں غصے میں کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے امی پر غصہ آ رہا تھا، وہ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں؟ باسم میری خالہ کا بیٹا ہے اور میرا پکا دشمن۔ وہ بچپن سے ہی میرا دشمن تھا۔ ابو ایک سرکاری ملازم تھے، میں جب 8 سال کی تھی تو وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تب میں نے باسم کو آصفہ خالہ کے ساتھ دیکھا تھا۔ 10 سالہ باسم بہت معصوم لگ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ بچہ معصوم نہیں بلکہ شیطان کا ابو ہے۔ 3 ہفتوں میں باسم نے اپنا شیطانی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ میں کاکروچ سے کتنا ڈرتی ہوں، پھر بھی وہ کاکروچ کو اس کی مونچھوں سے پکڑے میرے پیچھے پورے گھر میں بھاگتا رہتا تھا۔ جب تک کوئی اسے روک نہ لیتا وہ مجھے بھگاتے رہتا، کبھی میرے ہاتھ ایلفی سے جوڑ دیتا، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ اس سے مجھے تنگ کرنے کا ہر حربہ آزمایا۔ 2 ماہ میں میری زندگی عذاب بنا دی۔ وہ 2 ماہ کیسے گزرے یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ جب آصفیہ خالہ اپنے گھر جا رہی تھی میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ باسم جا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے اور دعا کی کہ وہ میری زندگی میں دوبارہ کبھی نہ آئے۔ مجھے باسم سے نفرت ہو گئی تھی۔ پھر جب 5 سال بعد وہ ہمارے گھر آیا، 15 سالہ باسم بہت شریف سا لگ رہا تھا، بہت خاموش، ایسا لگا جیسے وہ سدھر گیا ہے۔ مجھے کچھ تسلی سی ہوئی۔ سارا کام کر کے میں سکون سے سو گئی۔ صبح امی کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نیند سے بیدار ہوئی تو 12 بج رہے تھے۔ امی شور مچا رہی تھی۔ پھر یاد آیا آج خالہ واپس جا رہی ہیں۔ امی مسلسل مجھے بلا رہی تھی۔ میں بنا منہ دھوئے سیدھا لاؤنج میں جا پہنچی۔ خالہ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ امی مجھے دیکھ کر زور سے چیخ پڑی۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ دانین، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ امی مجھے پلکیں جھپک جھپک کر دیکھ رہی تھی اور خالہ خالو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے انہوں نے آیت الکرسی پڑھنے کے باوجود کوئی جن دیکھ لیا ہو۔ امی کمرے سے آئینہ لے آئیں اور میرے سامنے کیا۔ آئینہ دیکھ کر میری اپنی چیخ نکل گئی۔ میرے منہ پر اتنے سارے رنگ کہاں سے آ گئے؟ میں بھوت لگ رہی تھی۔ امی مسلسل صلواتیں سنائی جا رہی تھی۔ امی دیکھیں کوکاف کا جن باسم کو جیسے ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ مجھے اس کی ہنسی زہر لگ رہی تھی۔ دل کر رہا تھا اس کے دانت توڑ دوں۔ بیٹا جاؤ، جا کر منہ دھو لو۔ خالہ نے اپنے سپوت کو آنکھیں دکھا کر چپ کروانے کی کوشش کی تھی۔ امی اب منہ دھونے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ واٹر پروف کلرز ہیں۔ باسم اپنی ہنسی پہ بمشکل قابو پا کر بولا۔ دل تو کیا میں اس باسم کا قتل کر دوں، پر امی اور خالہ کی وجہ سے لہو کے گھونٹ بھرتے رہ گئے۔ خالہ باسم کی اس حرکت پر اسے ڈانٹنے ہی لگی تھی کہ امی نے یاد دلایا انہیں دیر ہو رہی ہے۔ امی ہمیشہ اسے بچا لیتی تھی۔ اس دن میں سمجھ گئی باسم کبھی نہیں سدھر سکتا۔ وہ دن اور آج کا دن، مجھے اس سے نفرت ہے۔ 10 سال بعد اس سے پھر سامنا ہوگا، پر اب کی بار اس سے کوئی شرارت کی تو میں بھی چپ نہیں رہوں گی۔ اب میں بچی نہیں رہی، 23 سال کی ہوں اور اس سے میں جواب دوں گی۔ اب چپ نہیں رہوں گی۔ پوری رات جاگتی سوتی کیفیت میں سوچتی رہی۔ صبح ہوتے ہی اسکول چلی گئی، بچوں کو پڑھا رہی تھی، پر دھیان کہیں اور تھا۔ جیسے تیسے کلاس لی۔ گھر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہاں شیطان اور باسم آ چکا ہوگا۔
पर ना चाहते हुए भी घर तो जाना ही था। बिल्डिंग के पास रिक्शा रुकवा कर मैं रिक्शे से उतर गई। जैसे ही चलने लगी तो मेरी चप्पल टूट गई। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने अपनी चप्पल हाथ में उठा ली और लिफ्ट की जानिब चली गई। मैं लिफ्ट में आने का इंतज़ार करने लगी, तभी एक लड़का मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। वो मुझे घूर रहा था। आप चप्पल मरम्मत करने वाली हैं? उसका अंदाज मज़ाहिया था। मैंने गुस्से से उसे देखा। लिफ्ट आ चुकी थी। मैं बिना कुछ कहे लिफ्ट में चली गई। कौन से फ्लोर पर जाएंगी आप? मैं तो 5th फ्लोर पर जाऊंगा। अगर मेरा पीछा कर रही हैं तो आप भी 5th फ्लोर पर ही जाएंगी। वो भी लिफ्ट में आ गया। उसने लिफ्ट का बटन दबाते हुए कहा, जाना तो मुझे 5th फ्लोर पर था, पर उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं क्यों करने लगी आपका पीछा? आप में कोई सुर्ख आपके पर लगे हुए हैं? मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुस्कुराया हो, और मुझे और ज़्यादा तब चढ़ गई। पहले अपना मुंह देखे, चिब्बे मुंह वाला हूँ। और हाँ, मुझे 3rd फ्लोर पर जाना है। इस बार वो खुलकर मुस्कुराया था और 3rd फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट 3rd फ्लोर पर रुक चुकी थी। अब आगे मुझे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जाना था। मैं लिफ्ट से निकलकर सीढ़ियों की तरफ चल गई, पर मुझे क्या पता था कि ये कब मेरे पीछे आ गया और सीढ़ियों पर पहले से ही मौजूद था। मैंने अल्लाह से पनाह मांगी इस शैतान मरदूद से, और बेनियाज होकर आगे चल पड़ी। मुझे देखकर वो मुस्कुरा रहा था। आप मेरा पीछा कर रही थी ना? मैं बिना जवाब दिए आगे चलती रही, और वो मेरे पीछे चला आ रहा था। दिल तो किया इस टूटी हुई चप्पल से उसको खूब मारूं, पर मैंने आगे चलने में ही भलाई जानी। वो बुराई मेरे पीछे चली आ रही थी। दानीन नाम है ना तुम्हारा? वो आपसे तुम पर आ गया था। मेरे तो होश उड़ गए। मैं एकदम रुक गई। उसे मेरा नाम कैसे पता? अव्वल दर्जे का लफंगा होगा, वैसे भी घर दूर नहीं है। मैंने गहरी सांस लेते हुए खुद को तसल्ली दी और तेज तेज चलने लगी। उसकी भी रफ्तार बढ़ गई। इस बदमाश को अपने पीछे आता देखकर मैंने भागकर घर जाने का इरादा कर लिया। मैंने भागते हुए पीछे मुड़कर देखा। मेरा तो दिमाग ही घूम गया। ये क्या, ये तो हद ही हो गई। ये तो मेरे पीछे भाग रहा है। मैं दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से बेल बजाने लगी। मेरी खौफ से हालत पतली हो रही थी। वो भी दरवाजे तक आ चुका था। मैंने उसे देखते हुए जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। ओहो, क्या हो गया है? आखिरकार अम्मी ने दरवाज़ा खोला। भागने की वजह से मेरा सांस चढ़ गया था। क्या हुआ है दानीन? अम्मी मुझे बगौर देखने लगी। वो लफंगा मेरा पीछा कर रहा है। कौन? अम्मी ने दरवाजे से मुंह बाहर निकाल कर देखा। सामने खूबरू नौजवान सीने पर हाथ बांधे मुस्कुरा रहा था। बासिम। अम्मी बेतहाशा खुश हुई और मैंने हैरत से इस लफंगे को देखा। सलाम खाला। अम्मी ने बासिम के माथे पर बोसा दिया और अंदर बोसा दिया। अंदर चलो बेटा। इस बासिम के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं। अम्मी, ये मुझे तंग कर रहा था। बेटा अंदर आओ। अम्मी मेरी बात अनसुनी करके अपने भांजे को लेकर अंदर जा चुकी थी। मैं अंदर आई तो बासिम बड़े मज़े से सोफे पर बैठकर मुझे तंग करने का किस्सा अम्मी को सुना रहा था। खाला, मैं तो देखकर ही पहचान गया था दानीन को। तुमने मुझे कैसे पहचाना, जबकि तुम मुझे 10 साल बाद देख रहे हो? मैं अपना हैंडबैग साइड पर रख कर सामने वाले सोफे पर बैठ गई। 10 साल बाद देख रहा हूँ, 50 साल बाद नहीं जो पहचान ना सकूँ। बासिम ने इत्मीनान से जवाब दिया। मुझे इंतहा की हैरत हुई। फिर भी ना, तुमने मेरी अभी वाली की कोई फ़ोटो ना देखी ना, तो मैं बच्ची हूँ और अब तो मैं काफ़ी चेंज हो गई हूँ। तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है, क्योंकि ना तुमने मुझे फेसबुक पर ऐड किया, ना तो व्हाट्सएप पर। अब मैंने तुम्हें देखा कैसे? इसका जवाब कैसे ढूंढे? बासिम ने चुटकी बजाई जैसे उसे कुछ याद आया हो। हाँ, खाला ने तुम्हारी फ़ोटो भेजी थी। अब ये ना पूछ लेना क्यों, मुझे कहने में शर्म आती है। बासिम ने मासूमियत से कहा। लहजे में शरारत छुपी थी। मैं तो तिल मिलाकर रह गई। आपको पता है आबिदा खाला, मैं बचपन में इसे कॉकरोच से डरा कर भगाया करता था, और आज बिना कॉकरोच के भगाया है इसे। बासिम को हंसी का दौरा पड़ गया था। मुझे वो सख्त जहर लग रहा था। बचपन में तुम्हारे हाथ में कॉकरोच होता था और आज तुम्हारा मुंह कॉकरोच जैसा बन चुका है। मेरे तड़क कर बोलने पर भी वो ढीठ बना हंसता रहा। अम्मी तो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे अभी कत्ल कर देंगी मेरा। चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। अम्मी ने बात बदलना चाही। खाला, ये मेरा घर नहीं है क्या? आप मुझे बताएं मेरा कमरा कौन सा है, मैं खुद चला जाऊंगा। बासिम ने बड़ी अपनायत का मुजाहरा करते हुए कहा। अम्मी ने कमरे की तरफ इशारा किया। बासिम उठ कर जा चुका था। उसके जाते ही मैंने शुक्र अदा किया। चलता फिरता टॉर्चर, ये कोई तरीका होता है बात करने का? अम्मी का गुस्सा तो 7वें आसमां पे था। वाह अम्मी वाह, उसने जो किया वो ठीक था। और वो कह रहा था, आपने मेरी फ़ोटो क्यों भेजी? तुम्हारे रिश्ते के लिए, बहुत सादा से अंदाज में कहा गया। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। ये बात बासिम को पता है अम्मी? अम्मी ने नरमी से मेरे हाथ थामे। हाँ, बासिम को पता है दानीन। वो यहाँ इसीलिए आया है कि तुम उसको कबूल कर लो। देखो, मैं तुमसे अभी नहीं कह रही कि तुम मुझसे शादी कर लो। तुम बासिम को देख लो, उसको जान लो। मैं एक माँ बात पूछूंगी, तुम्हें बासिम कबूल है?
मेरी बेजारी अरूज पर थी। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ गई। कुछ साल पहले अम्मी से खाला ने मेरा रिश्ता मांगा था। मैंने साफ इनकार कर दिया था, पर मैं ये नहीं जानती थी कि बासिम मुझसे हाँ कहलवाने के लिए हैदराबाद से कराची आ जाएगा। मुझे बासिम किसी हाल में कबूल नहीं। फैसला हो गया था। मैं सुबह तैयार होकर अपने कमरे से निकली तो बासिम ने नाश्ता बनाया था। अम्मी उसके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, जैसे मेरा ही इंतज़ार किया जा रहा था। वहाँ क्यों खड़ी हो दानी, ना वो नाश्ता कर लो, बासिम ने मुस्कुराते हुए बहुत अपनाइयत से कहा। उसका ये अंदाज़ देखकर मुझे उस पर शक होने लगा था। मैंने जैसे तैसे नाश्ता किया। ओके अम्मी, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है, अल्लाह हाफिज़। अम्मी ने जवाबन अल्लाह हाफिज़ कहा। मैं बासिम को नज़रअंदाज करके वहाँ से जाने लगी। तुम जाओगी कैसे? चाय का कप टेबल पर रख के वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। एक तो उसे मुझे आवाज़ देकर रोक लेने का पता नहीं क्या शौक था, लफंगा कहेगा। बस या रिक्शा से? मुरवतन मुस्कुराकर जवाब दिया। दिल तो चाह रहा था अपना बैग उसके सर पर मार कर भाग जाऊं, पर हाय मेरा इखलाक। तुम चलो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हाँ बेटा, तुम बासिम के साथ चली जाओ। अम्मी के चेहरे पर खुशी और इत्मीनान के तासुरात थे। अम्मी, मेरी दोस्त भी मेरे साथ जाएगी। मैंने आंखों से इशारा करते हुए इनकार किया। तो हम उसको भी साथ ले लेंगे, वैसे भी मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है। तुम बोलो अपनी दोस्त को हमारे साथ चले। ठीक है, अब चलो। अल्लाह हाफिज़ खाला। अब्बास से मेरा जवाब सुने बिना ही बाहर चला गया। वो मेरी सोच से भी ज़्यादा ढीठ था। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। मेरे सारे बहाने फ्लॉप हो चुके थे। मैं अभी पैर पटकती बासिम के पीछे हो ली। हम लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे कि हरीम भी आ गई। सॉरी, मैं लेट हो गई। मुझसे मिलते ही उससे माजरत कर लिया। माजरत करने की बजाय जल्दी चलो, मैंने लिफ्ट की तरफ इशारा किया। हरीम भी इसी अपार्टमेंट में 5th फ्लोर पर ही रहती थी। हम बातें करते हुए पार्किंग एरिया में आ गए। बासिम ने हमें कार में बैठने का इशारा किया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। हम दोनों पीछे बैठ गए। वैसे ये है कौन? आखिर हरीम ने पूछ ही लिया। अब क्या जवाब तो देना ही था। मेरा कज़न है, मैंने सरसरी सा जवाब देते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। मेरा नाम बासिम है और आपका? बासिम ने बैक व्यू मिरर सेट करते हुए बड़े दोस्ताना अंदाज में कहा। मैं हरीम हूँ, दानीन की बेस्ट फ्रेंड। हरीम ने भी जवाब देने में कोई देर ना की। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, अभी थोड़ी देर पहले इसने कहा था मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है, और अब सारी शर्म हया भूल कर कैसे बातें कर रहा था, बेशरम। आप यहाँ कितने दिन रुकेंगे? हरीम ने भी उसी दोस्ताना अंदाज में पूछा, जब तक दानीन हाँ नहीं करती। बासिम ने बैक व्यू मिरर से देखते हुए कहा। दानीन हाँ नहीं करती मतलब? पता नहीं, इसे सच में समझ नहीं आया या जानबूझकर नासमझ बन रही थी वो। मुझे शर्म आ रही है। अब आप इतना कह रही हैं तो बताता हूँ। हमारी शादी के लिए। बासिम ने शर्माने की नाकाम कोशिश की थी। ओह अच्छा। हरी मज़े से बोली तो मैं तिल में ला गई। ये तुम्हारी कैसी शर्म है? बेशर्मों की तरह सब बता भी रहे हो और शर्माने की अदाकारी भी कर रहे हो। तुम अव्वल दर्जे के बेशर्म हो। मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। एकदम कार रुक गई। मेरा खून बाद में करना, पहले जाकर बच्चों को ए फॉर एप्पल पढ़ाओ। बासिम मुस्कुराहट दबाए मुझे देख रहा था। उस वक्त वो मुझे जहर लग रहा था। पहले ही काफ़ी देर हो चुकी थी। अब इससे लड़कर मुझे मज़ीद लेट नहीं होना था। बाद में देख लूँगी तुम्हें। मैंने खूनख्वार नज़रों से उसे देखा, पर वो ढीठ का ढीठ ही था। हरीम, तुम इसे लेकर जाओ, वरना ये नॉन स्टॉप मुझसे लड़ती रहेगी। वो बड़ी आसानी से आपसे तुम पर आ गया। ये कितना तेज़ है! अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें आप कहकर वो खातिब कर रहा था, अब सीधा तुम पर आ गया। मैंने हरीम को वर्गलाना चाहा। हाँ तो हरीम मेरी भी दोस्त हो गई, सिंपल। हरीम के कुछ कहने से पहले ही बासिम कंधे उचकाकर बोला। तो बह चलो हरीम, कार का दरवाज़ा धड़म से बंद करते मैं बाहर निकली। हरीम भी मेरे पीछे आ चुकी थी। आज घर क्यों इतनी जल्दी जा रही हो? मुझे उजलत में बुक्स समेटते देख हरीम ने पूछा। इसलिए कि बासिम का कोई भरोसा नहीं, वो मुझे लेने आएगा, इसलिए जल्दी जा रही हूँ। मैंने थके हुए अंदाज में कहा। मैं बासिम के आने से पहले घर जाना चाहती थी, पर उसने ऐसा तो नहीं कहा था कि तुम्हें लेने आएगा। उसको मुझे तंग करना होता है, इसलिए वो मुझे तंग करने ज़रूर आएगा। मैं बाहर निकली तो बस मंजर ही कुछ और था। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। बासिम अपनी कार से टेक लगाए खड़ा था, जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रहा हो। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मुझे देखकर वो हाथ हिलाने लगा। मैं उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गई। बासिम भी मेरे पीछे चल पड़ा। रुको, कहाँ जा रही हो? गाड़ी में बैठो। उससे आवाज़ देकर मुझे रोकना चाहा। मैंने गुस्से से मुड़कर देखा। तुम्हारी गाड़ी में बैठने से बेहतर है कि मैं पैदल चली जाऊँ। मैंने बुक खोलकर सामने की और
तेज़ चलने लगी। उस वक़्त मुझे बासिम की कोई बात नहीं सुननी थी। ऐसे ही रोड पर बुक पढ़ते हुए चलोगी तो घर नहीं सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाओगी। हॉस्पिटल भी मुझे ही ले जाना पड़ेगा, बासिम बड़ी मासूमियत से बोला। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही थी। मुझे पता है तुम गाड़ी में भी यही बकवास करोगे। वैसे भी मैं अपनी मंजिल तक पहुंच रही हूँ। मैंने तड़क कर जवाब दिया तो कुछ पल को वो चुप सा हो गया। और मेरी मंजिल तुम हो, बासिम बड़बड़ाया। मेरे गुस्से में इजाफा हुआ। व्हाट? मैं रुक गई और गुस्से में उसे देखने लगी तो बासिम गड़बड़ा गया। मैं बिल्कुल चुप रहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। ये देखो, मैं हाथ जोड़कर तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे साथ चलो। मैं बकवास नहीं करूँगा, पक्का कोई बकवास नहीं करोगे? मैंने एक बार फिर पूछा। पक्का, अब चलो ना, उसने संजीदगी से कहा। मैं पल भर के लिए उसके सारे कारनामे भूल चुकी थी। मैं ना चाहते हुए भी उसके साथ चल पड़ी। आसमा ने एक हाथ पे फ़ोन पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से कपड़े इस्त्री कर रही थी। मेरे कपड़े इस्त्री हो गए? कुरैश ने उसे आवाज़ दी। नहीं हुए। अच्छा आबदा, मैं बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज़। आसमा फ़ोन रखते ही जल्दी जल्दी कपड़े इस्त्री करने लगी। अभी तक कपड़े इस्त्री नहीं हुए, कमाल है। और मेरा मोबाइल कहाँ है? कुरैश साहब भी उधर आ गए। वो मेरे पास है, मैं आसमा से बात करी थी। मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी तो आपका मोबाइल उठा लिया। आसमा ने कुरैश साहब की जानिब मोबाइल बढ़ाया। मेरे मोबाइल की बैटरी भी लो कर दी तुमने, पर तुम्हारी बातें ख़त्म ना हुई। कुरैश मसनूई गुस्से से बोले। तो आप कौन से बिल गेट्स हैं जो थोड़ी देर फ़ोन ना चले तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा? आबदा ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया तो कुरैश हंस पड़े। पूरा एक माह हो गया था बासिम रोज़ मुझे घर से स्कूल और स्कूल से घर ड्रॉप करता था। इस दौरान उसकी बकवास बातें अलग से तंग करती थी मुझे। मैंने इरादा कर लिया था, कुछ भी हो जाए मैं बासिम के साथ नहीं जाऊंगी और वो हमारे घर से चला जाए। बेटा इतनी जल्दी कैसे आ गई? अम्मी ने परेशानी से पूछा। वो मैं जिन से पीछा छुड़ाना चाहती थी, पर वो पीछा छोड़ता ही नहीं है। मैंने गुस्से से बैग को सोफे पर फेंक दिया। अम्मी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कौन? अम्मी ने सवालिया नज़रों से मुझे देखते हुए पूछा। आपका लाडला बासिम। मैंने गुस्से से कहा। कहाँ है वो? अम्मी परेशानी से पूछने लगी। उनको मेरी कोई फिक्र नहीं, अभी भी अपने लाडले की पड़ी थी, ऐसे जैसे मैंने उसे ही कत्ल कर दिया हो। मुझे छोड़कर ऑफिस चला गया। आपने उस अजाब को यहाँ रुकने का क्यों कहा? वो हाथ मुंह धोकर मेरे पीछे पड़ा है। मैं फट पड़ी। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी उसे। बेटा ऐसे नहीं बोलती, अम्मी ने दुखी लहजे में कहा। मैंने अम्मी को सोफे पर बिठा खुद नीचे उनके सामने बैठ गई। अम्मी ऐसे ही बोलते हैं, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? 1 महीना हो गया, अब तक उसकी कंपनी ने उसको घर नहीं दिया। अब बहुत हो गया, उसे यहाँ से जाने का कह दे और मेरी तरफ से उसके लिए आज भी इनकार है, बस वो यहाँ से चला जाए। अम्मी का हाथ थाम कर मैं उन्हें समझाने की कोशिश की। अम्मी दुखी थी, पर उस वक्त मुझे बासिम से छुटकारा पाने की जिद थी। वो मेरी बहन का बेटा है दानीन, वो मेरे लिए बहुत अहम है। मैं उसे ऐसे कैसे कह दूँ कि चला जाए? अम्मी ने मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर इल्तिजा की थी। मुझे पता नहीं क्यों बहुत दुख हुआ। मैं अपना हाथ छुड़ाकर उठ गई। आपने हमेशा उसी को सपोर्ट किया है। आप उसे ये तो कह सकती हैं कि मुझसे दूर रहे, कोई ज़रूरत नहीं घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ने की। ये कहकर मैं वहाँ रुकी रही थी, सीधा अपने कमरे में चली आई। रात के 9 बज रहे थे। अम्मी लाउंज में परेशान बैठी बासिम का इंतज़ार कर रही थी। मैं किचन में अपने लिए चाय बनाने में मसरूफ़ थी। तभी बासिम आया और अम्मी के साथ ही बैठ गया, ऐसे जैसे उसे पता हो कि अम्मी क्यों परेशान है। खाला, मुझे मेरी कंपनी ने घर दे दिया है, ये देखिए उसकी चाबी। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुई। शुक्र जान छुटी बेटा, पर तुम यही रहो। अम्मी ने बासिम के सर पर हाथ फेरा। ये मंजर देख देख कर मैं भी चुप न रह सकी। अम्मी जा रहा है तो इसे जाने देना, मैंने किचन से आवाज़ लगाई। खाला, मैं आता जाता रहूँगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। और दानीन का जवाब भी मिल गया। अब मेरा चले जाना ही बेहतर है। इससे पहले कि अम्मी कुछ कहती, बासिम तसल्ली अमेज़ अंदाज में बोला। पर बेटा नहीं खाला, मुझे बोलने दे। बासिम ने अम्मी के हाथ थामकर उन्हें कहने से रोका। मेरी शादी की जिम्मेदारी अभी आपके हाथों में है। मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढेगा, बासिम ने मुस्कुराकर कहा तो अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा अब आप इमोशनल ना हो, मैं अभी नहीं जा रहा, 1 हफ्ते बाद जाऊंगा। ये बात बासिम ने ज़ोर से कही थी, जैसे स्पेशली मुझे बता रहा हो। दिल करता है इसका कत्ल कर दूं। मैं गुस्से में मुट्ठियां भींच कर रह गई। मेरा बेटा। अम्मी ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरा। उनकी नज़र एक शॉपर पर पड़ी जो बासिम अपने साथ लाया था। ये क्या है बेटा? अम्मी ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसमें कलर्स है, बासिम ने शॉपर अम्मी को दिखाया। मुझे तो लगा घर मिलने की खुशी में मिठाई होगी। कलर्स का सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। कहीं ये पहले की तरह मेरे मुंह पर तो नहीं लगाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। हो भी सकता है, उसको 2 बार रिजेक्ट किया है मैंने, शायद इसका बदला ले। मैं अपने ही ख्यालात में उलझ के बासिम अपने कमरे में जा चुका था। अम्मी भी जा रही थी कि उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। अब खुश हो गई हो ना तुम? वो जा रहा है, अम्मी ने गुस्से से कहा तो मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। खुश तो मैं तब भी होती जब वो कल ही चला जाता। और ये कलर्स क्यों लाया है वो? मैंने मुंह बनाकर कहा।
तुम्हारे मुंह पर लगाने के लिए। अम्मी भी गुस्से में कहकर चल जा चुकी थी। मैं मुंह खोले वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। ये नहीं सुधरेगा, इस बार उसने ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुबह के 7 बज रहे थे। आसमां को बादलों ने घेर रखा था। सुबह की ठंडी ठंडी हवा में चाय की खुशबू घुली हुई थी। अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी। बासिम डाइनिंग टेबल पर मज़े से नाश्ता कर रहा था। मैं भी नाश्ते के लिए बैठ गई। ये सुबह सुबह किस जहरीले आदमी को देख लिया। बासिम से नज़र मिलते ही मैं बड़बड़ाई। नज़र नज़र की बात है, किसी को जहर लगता हूँ, किसी को शहद। बासिम ने मेरी बड़बड़ाहट का जवाब दिया, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं किस को ये काकरोच शहद लगता है। मेरा इतना कह रहा था कि बासिम बेचारा लाजवाब हो गया। अभी मैं लेट हो रही हूँ, आप प्लीज़ बासिम को बोले जल्दी नाश्ता करें। मैंने नाश्ता करके अब्बी से कहा, बेटा कल तुम ही नहीं मना किया था कि बासिम को कि तुमसे दूर रखो, तो अच्छा यही होगा कि तुम खुद चली जाओ। अम्मी ने तो सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया था। मैं हैरत से अम्मी को देखने लगी। जी अम्मी, इस बार मैं खुद लाजवाब हो चुकी थी और शर्मिंदा भी। अम्मी ने तो ज़रा ख्याल ना किया। चलो जल्दी करो, देर हो रही है। अम्मी मुझे दरवाजे तक ले आई, बस धक्के मारने की कसर रह गई थी। बासिम सब कुछ नज़रअंदाज किए नाश्ता करने में पूरी तरह मसरूफ़ था। ओके, अल्लाह हाफिज़, मैं बेचारगी से कहती वहाँ से चली गई। इन 2-4 दिनों में मैंने बासिम की बकवास बिल्कुल नहीं सुनी थी। जाने क्यों मैं उसकी बकवास को मिस कर रही थी। अब ना तो वो मुझे तंग करता था, ना कोई मजाक। हम एक ही घर में बिल्कुल अजनबी बन चुके थे एक दूसरे के लिए। शायद वो सुधर गया था या बदल गया था, या फिर मेरे जज्बात और एहसासात उसके लिए बदल गए थे। क्या हुआ दानीन? हरीम मेरे पास आकर बैठ गई तो मैं मुस्कुरा दी। कुछ भी नहीं, मैंने चाय का सिप लेते हुए कहा। फिर उदास क्यों बैठी हो? हरीम ने सवालिया नज़रों से मुझे देखा। मैं और उदास, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा कहकहा बेसाख्ता था। हरीम बेचारी चुप सी हो गई। और बासिम कैसा है? हरीम ने एक और सवाल किया। तुम उसका बड़ा पूछ रही हो, इतना ख्याल कभी मेरा भी कर लिया करो। मैं खफा सी हो गई। इतने दिनों से नज़र नहीं आया ना? हरीम नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली। मैं गौर से उसे देखने लगी। तुम्हें क्यों नज़र आए वो? हाँ, मैंने घूर कर हरीम को देखा। उफ दानीन, अजीब पागल लड़की हो तुम भी। हरीम बुक्स उठाकर क्लास की तरफ चली गई। मेरा दिलो दिमाग अजीब उलझन का शिकार था। खाला, मैं जा रहा हूँ, हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। आपदा को हल्का सा चक्कर आ गया। वो गिरने ही लगी थी पर बासिम ने उन्हें थाम लिया। क्या हुआ खाला, क्या हुआ? हासिम बासिम आपदा को बिठाकर पानी लेने गया। वो बहुत परेशान हो गया था। कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ अब। आपदा ने पानी का गिलास लेते हुए कहा। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बासिम ने परेशानी से उनकी पेशानी को छू कर देखा। खाला, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। बासिम डॉक्टर को फ़ोन करने लगा। मैं डोरबेल बजा रही थी। पता नहीं क्यों आज अम्मी को दरवाज़ा खोलने में इतनी देर लग रही थी। तुम ऑफिस नहीं गए? मैंने अंदर दाखिल होते ही सवाल किया। दरवाज़ा बासिम ने खोला था। नहीं, वो बासिम अभी बोल ही रहा था कि मैंने उसकी बात काट दी। ये कौन है बासिम? डॉक्टर को देखकर मैंने बासिम से पूछा। डॉक्टर को यहाँ देखकर मुझे घबराहट सी होने लगी थी। इससे पहले कि बासिम कुछ कहता, डॉक्टर साहब खुद ही बासिम के पास चले आए। शी इज़ फाइन, बस बुखार और बीपी लो होने की वजह से उनको चक्कर आ रहे थे और ये कुछ दवाइयाँ हैं, इनको टाइम टू टाइम ये दवाइयाँ देनी हैं। डॉक्टर साहब और भी कुछ हिदायत दे रहे थे। मैं वहाँ रुकी नहीं थी, भाग कर अम्मी के कमरे में जा पहुँची थी। अम्मी, मैंने उन्हें आवाज़ दी पर वो सो रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उनके पास बैठकर कितनी देर उन्हें देखती रही। बासिम कमरे में आ गया था। मैंने गुस्से से उसे देखा और बाहर आने का कहकर कमरे से निकल गई। बासिम, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अम्मी की तबीयत ख़राब थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम बहुत लापरवाह इंसान हो। तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। मेरा सारा गुस्सा आंसू में बदल चुका था। बस हो गया तुम्हारा, अब मेरी सुनो। तुम्हें फ़ोन करने से क्या होता? तुम डॉक्टर तो नहीं हो जो तुम खाला का इलाज करती। इस वक्त मुझे डॉक्टर को फ़ोन करना सही लगा, ना कि तुम्हें। और हाँ, हूँ मैं लापरवाह। बासिम गुस्से में बोल रहा था। पहली बार वो गुस्सा कर रहा था। मेरे आंसू और तेज़ी से बहने लगे। कहाँ जा रहे हो? बासिम को ज़्यादा देखकर मैंने पूछ लिया। मेडिसिन लेने जा रहा हूँ, तुम खाला के पास जाओ, मैं आता हूँ, उसने धीमे लहजे में कहा। अब की बार उसका गुस्सा कहीं गायब हो गया था। मैं उस बात में सर हिलाकर अम्मी के कमरे में चली गई। मैं अम्मी का हाथ पकड़कर बैठी थी कि डोरबेल बजने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने बासिम था। ये दवाई है, शाम को खाला को देनी है। बासिम ने मेरे हाथ में दवाइयाँ थमाई। तुमने कुछ खाया? बासिम ने अचानक ही सवाल कर लिया। थोड़ी देर पहले तो वो बहुत गुस्से में था और अब इतना संजीदा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैंने मुंह बनाकर जवाब दिया। उसका गुस्सा करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। देखो दानीन, अगर तुम खाओगी नहीं
तुम्हारे लिए भी डॉक्टर बुलवाना पड़ेगा, और मैं तुम्हारे लिए बाहर से खाना लाया हूँ, संजीदगी में कहते हुए बासिम हंसने लगा। अच्छा, सिर्फ मेरे लिए? उससे मैंने उससे खाने का पैक लिया और किचन में चली गई। मतलब मैं भी खाऊंगा? और सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बासिम भी किचन में चला आया। मुझे हैरत हुई, पहली बार वो अपनी की गई किसी बात में माजरत कर रहा था, और माजरत भी मुझसे। तुमने कभी अपनी गलती पर मुझसे माफ़ी नहीं मांगी, आज तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, आज जबकि तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। बासिम का मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने भी उससे माजरत कर ली। जब वो कर सकता है बिना किसी गलती के, तो मैं भी कर सकती हूँ। उसकी माफ़ी से मैं पिघल चुकी थी, इतना तो बनता ही था। दानीन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, या डॉक्टर को बुलवाऊं? बासिम को जैसे यकीन नहीं आ रहा था, इतनी हैरानगी वो मेरा चेहरा तके जा रहा था। फिर से तुम्हारी बकवास शुरू। मैं खाना निकालकर डाइनिंग रूम में चली गई। बासिम भी पीछे ही आया था। रात के 8 बज रहे थे। मैं और बासिम अम्मी के कमरे में थे। अम्मी, आपकी तबीयत कैसी है? एक बार फिर मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दानीन, अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा अम्मी, अभी आप आराम करें, तुम जाओ, मैं खाला के साथ हूँ, बासिम ने अम्मी के सामने बैठते हुए कहा। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। तुम जाओ, मैं अम्मी के साथ हूँ। देखो दानीन, ऐसा करते हैं, दोनों ही खाला के पास रुक जाते हैं। बासिम मसले का हल निकाल कर आराम से बैठ गया। वैसे भी अम्मी के पास रहना था, तो मैं मज़ीद कुछ कहे बिना वहीं बैठी रही। काफ़ी देर हम यूं ही खामोश बैठे रहे। अम्मी सो चुकी थी। वैसे तुम चाहो तो तुम यहाँ इस घर में रह सकती हो, मैंने खामोशी तोड़ते हुए कहा। मैं न जाने क्यों बहुत शर्मिंदा हो रही थी। जो पहले सही लग रहा था वो अब क्यों इतना गलत लग रहा था। मैं इतनी बेहिस तो नहीं थी। जब आपको महसूस हो कि आपकी जगह किसी की ज़िंदगी में नहीं रही, तो आपको उसकी ज़िंदगी से एग्ज़िट कर लेना चाहिए। बासिम का काफ़ी दिल शिकस्ता और संजीदा था। मुझे और ज़्यादा शर्मिंदगी होने लगी। छोड़ो इन सब बातों को, शायद बासिम ने मेरी शर्मिंदगी महसूस कर ली। उसे मुस्कुराकर बात बदल दी। मैं मुस्कुरा भी ना सकी। एक बार फिर कमरे में खामोशी छा गई। बासिम सोफे पर बैठा बैठा ही सो गया था। मैं भी वहीं अम्मी के करीब ही लेट गई। मैं नाश्ता बनाने चली गई। जब मैं अम्मी के लिए नाश्ता लेकर आई तो वो जाग रही थी और पहले से काफ़ी बेहतर लग रही थी। बासिम वहाँ नहीं था, शायद अब तक कमरे में चला गया था। आपका नाश्ता? मैंने नाश्ता अम्मी के सामने रखा। बासिम कहाँ है? अम्मी पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई। अम्मी आप नाश्ता करें, मैंने नाश्ते की तरफ इशारा किया। बासिम ने नाश्ता किया। वो अपने कमरे में है, पहले आप कर लें नाश्ता, इसके लिए मैं बाद में नाश्ता बना दूंगी, इतनी भी जालिम नहीं, मैंने नाक चढ़ाकर कहा। अम्मी घड़ी को देखने लगी। उसके कपड़े इस्त्री कर दो दानीन, उसको ऑफिस भी जाना है। बासिम को कपड़े इस्त्री करना नहीं आते। अम्मी मुसलसल बासिम के लिए परेशान हो रही थी। कितनी फिक्र और ख्याल था। मैं इस बात में सर हिलाकर बाहर आ गई। सारी दुनिया की बकवास आती है, बस इस्त्री करना नहीं आती। मैं बड़बड़ाती हुई इसके कमरे की तरफ आ चुकी थी। दरवाज़ा खुला अध खुला था। 2 बार नॉक करने से जब जवाब नहीं आया तो मैं अंदर चली गई। अंदर का नज़ारा देखकर मेरा सर घूमने लगा। 1 मिनट को मैं सुन्न हो चुकी थी। सारी चीज़ें बिखरी पड़ी थी, कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं थी। ये कमरा है या चिड़ियाघर? मैंने अपना सर पीट लिया। बासिम वहाँ भी नहीं था। मैं गुस्से से बाहर चली आई। मुझसे 1 मिनट ना रुका गया। वो पता नहीं कैसे रहता था, जंगली कहीं का। डोरबेल बजने की आवाज़ आई तो मैं गुस्से से सर झुटक कर दरवाज़ा खोलने चली गई, लेकिन बासिम तो इतने में दरवाज़ा खोल चुका था। सामने हरीम थी। बासिम दरवाजे से हट गया तो हरीम अंदर आ गई। वो दानी ने बताया कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं, तो मैं उनसे मिलने चली आई। हरीम अंदर आते ही हिचकिचाकर कहने लगी। वो कंफ्यूज थी। मैंने अभी जवाब देने को मुंह ही खोला था कि बासिम बोल पड़ा। ये तुम्हारा अपना घर है, इसलिए तुम जब चाहो आ सकती हो, इसलिए किसी वजह का होना ज़रूरी तो नहीं। तुम बैठो। बासिम बड़े दोस्ताना अंदाज में कह रहा था और हरीम तो ऐसे खुश हो रही थी जैसे वो बासिम नहीं बल्कि शाहरुख खान। और मेरा तो मुंह खुले का खुला रह गया। नहीं, पहले मैं आंटी से मिल लूँ, हरीम ने मुस्कुराकर कहा। बासिम ने कंधे झुका दिए। अम्मी अपने रूम में है। मुझे मजबूरन याद दिलाना पड़ा कि मैं भी यहाँ हूँ। दोनों मुझे इग्नोर किए जा रहे थे। पता नहीं क्यों मुझे बुरा लग रहा था। हरी मुस्कुराकर रूम की तरफ चली गई और बासिम भी उसके पीछे जाने लगा था। मैं कमर पर दोनों हाथ टिकाए उसके सामने खड़ी होगी। उसने अब्रू उचकाकर रास्ता छोड़ने का इशारा किया। दिल तो किया अभी उसके सर पर सामने रखा गुलदस्ता दे मारूं। ये क्या कह रहे थे तुम? ये उसका अपना घर है। मैं उसे घूरने लगी, शायद उसको कोई शर्म ही आ जाए, पर वो भी सदा का बेशर्म था। हाँ, तो उसका अपना ही घर है। वो ढिठाई से जवाब देकर जाने लगा। मैंने एक बार फिर रास्ता रोक लिया। किस हिसाब से? मैंने चेहरे पर मस्तूई मुस्कुराहट से जाकर पूछा। ये घर उसकी बेस्ट फ्रेंड का है, उस हिसाब से ये घर उसका भी है। उससे इत्मीनान से जवाब दिया, फिर गौर से मेरे चेहरे को देखा। पर तुम क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? बासिम अपनी छोड़ी पर हाथ रखे पुरसोच अंदाज में मुझे देख रहा था। मैं गड़बड़ा सी गई। मेरी मर्जी में जा रही हूँ। मैंने मुंह फेर लिया तो वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। अब की बार वो
बहुत संजीदा लग रहा था। घर छोड़कर उसने आहिस्तगी से कहा। दानिन ने अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश की थी, जो नाकाम रही। भाड़ में जाओ बासिम, मैं घर छोड़ के नहीं जा रही, अम्मी के रूम में जा रही हूँ। उसका कहकहा बेसाख्ता था। मैं उसे धक्का देकर अम्मी के कमरे में चली आई और हरीम के साथ बैठकर बातें करने लगी। बासिम कमरे में आए तो उसके हाथ में ट्रे थी। बासिम ने ट्रे टेबल पर रख दिया तो मैं हैरान को नज़रों से उसे देख रही थी। बेटा मुझे भी चाय देना, अम्मी ने बासिम से कहा तो बासिम ने ट्रे से ग्लास उठाकर उन्हें थमा दिया। खाला, आपके लिए चाय नहीं, फ्रेश जूस, आप ये पिएंगी। अम्मी ने मुस्कुराते उसके सर पर हाथ फिर और जूस पीने लगी। ये चाय तुमने बनाई है बासिम? हरीम ने चाय के सिप लेकर कहा। चाय को देखने लगी कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। चाय बहुत अच्छी है, हरीम सिप लेते तारीफ करती। बहुत बुरी लगी थी मुझे। थैंक यू, बासिम ने हल्का सा सर को खम दिया। तुम्हारी शादी जिस भी लड़की से होगी वो बहुत खुशनसीब होगी। हरीम को चाय में ना जाने क्या घोल कर पिलाया था कि वो बासिम के गुण गाए जा रही थी। और ये शादी की बात करने की क्या ज़रूरत थी? बेटा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, वैसे भी मैं बासिम के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। अम्मी से तो शादी की बात पर रहा नहीं जाता था। बासिम ऐसे शर्मा रहा था जैसे वो नई नवेली दुल्हन हो। मैं दिल ही दिल में करने लगी। हाँ, जैसे ढूंढने से मिल जाएगी, मैंने जलकर कहा। इसे छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हें बासिम कैसा लगता है? अम्मी हरीम से पूछने लगी। इस बात पर मैं खुद को रोक ना पाई, बेख्तियार चीख पड़ी। अम्मी, ये आप मेरी दोस्त से किस तरह की बातें कर रही हैं? मैं अपनी जगह से उठ खड़ी हो गई। आंटी मुझसे पूछ रही हैं तो तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहो। हरीम ने मेरा हाथ खींचकर दोबारा अपने पास बिठा लिया। मैं बारी बारी सबके चेहरे देखने लगी। बासिम चेहरे पर संजीदगी तारी किए खामोश बैठा रहा। देखिए आंटी, बासिम बहुत अच्छा है, खाना भी बना लेता है, अच्छी जॉब है। मेरी तरफ से तो हाँ है। ऐसे कैसे तुम्हारी तरफ से हाँ है? कोई बासिम से भी तो पूछ ले, मैं हैरत ज़दा सी आवाज़ में बोली। तो अभी पूछ लेती हूँ बासिम, क्या तुम्हें मेरा फैसला मंजूर है? अम्मी तो आज के आज बासिम की शादी करने को तैयार थी। खाला, वो क्या है कि बासिम कुछ कहते कहते रुक गया। हाँ, मेरी तरफ से हाँ है, मुझे कोई इनकार नहीं। बासिम का जवाब सुनकर मुझे सदमा लगा। ये क्या कह रहे हो पागल इंसान? तुम तो मुझे। मैंने अपने लहजे को टूटने से बचाने की नाकाम कोशिश की। मेरी आंखें छलकने को थी। हाँ दानिन, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर तुमने मुझे एक बार नहीं 2 बार रिजेक्ट किया। इसके बाद भी मैं यहाँ रहा कि शायद तुम मुझे कबूल कर लो। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, किसी को तो ना ज़बरदस्ती हाँ, किसी की ना को ज़बरदस्ती हाँ में तो नहीं बदला जा सकता। वो किस इत्मीनान से ये कह रहा था, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मुझे लगा तुम जैसे पहले थे वैसे ही हो। आखिरकार मेरी आंखें छलक पड़ी। उस वक्त मेरा गम और गुस्से से बुरा हाल था। तब मैं बच्चा था दानिन, और बचपन में बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन अब क्या फ़ायदा तुम्हें समझाने का? बासिम ने कंधे उचका दिए। जाने क्यों बासिम की इन बातों से मेरा दिल दुख रहा था। हाँ, अब क्या फ़ायदा मुझे समझाने का? तुमने तो हरीम के लिए हाँ कर दी। मैंने अपने हाथ की पूंछ से आंसुओं को साफ किया। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अपनी जगह से उठकर अम्मी के पास चली गई। अम्मी, आपने मुझसे पूछा था कि मैं बासिम से शादी करूंगी या नहीं, तो सब सुन ले। मेरी तरफ से हाँ है, मुझे बासिम कबूल है, और तुम दोनों अब करके दिखाओ शादी। मैंने उंगली दिखाकर वार्निंग दी। सब हंस पड़े। मैं शॉक्ड सी उन्हें देखने लगी। आप सब हंस क्यों रहे हैं? मैंने ना समझी से पूछा। बेटा, तुमसे हाँ कहलवाने के लिए ये सब नाटक करवाना पड़ा, अम्मी ने हंसते हुए कहा। तो हरीम, मैंने हरीम को देखा जो अब भी हंस रही थी। हाँ दानिन, मैं इस नाटक का मेन किरदार हूँ, और ये आइडिया मैंने ही दिया था आंटी को। अब जब मैं रूम में आंटी के पास आई तो वो तुम्हारे और वासिम के रिश्ते को लेकर बहुत परेशान थी। बस फिर सारी जिम्मेदारी मुझे अपने नाजुक कंधों पर लेनी पड़ी, और देख लो नतीजा। अब तुम प्लीज़ ये मत समझ लेना कि मुझे पहले से ही सब पता था। मुझे भी इस नाटक के दौरान ही पता चला। खाला ने मुझसे हरीम के मुतल्लिक पूछा तो मैं हरीम के लिए इनकार करने लगा था, जब खाला ने मुझे आंख से तुम्हारी तरफ देखकर इशारा किया। मैं समझ गया, यहाँ ये सब जो हो रहा है खाला और हलीम का कोई प्लान है। मैंने भी इस नाटक में अपना हिस्सा डाल दिया। मेरे घुटने पर उससे दोनों हाथ उठाकर सफाई दी। इतनी देर से मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। मैं नाराज़गी से बोली, ये मत समझना कि मैंने तुम्हारी वजह से हाँ की है। वो तो मैंने अम्मी की वजह से हाँ की है। मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। अम्मी ने मेरे शाने पर हल्का सा थप्पड़ मारा। अम्मी की वजह से हाँ की सब जानती हूँ मैं, अम्मी ने मेरी नकल उतार कर कहा। तो एक लम्हे को मैं झीम सी गई। एक बार फिर सब हंसने लगे। पूरा घर सजा हुआ था। आज दानिर और बासिम का निकाह था, जो कि बहुत सादगी से हो रहा था। बासिम के हाथ में एक बॉक्स था। बासिम सबसे बच बचा कर दानिन के रूम की तरफ आ गया। दरवाज़ा लॉक नहीं था। कुछ देर पहले हरीम दानिन के रूम से बाहर निकली थी। सुर्ख लहंगा मुझ पर इस कदर जच रहा था कि मैं बार बार खुद को आईने में देखे जा रही थी। मैं आईने में खुद को देख रही थी जब बासिम रूम में आया।
उसे देखकर मैं पलकें झपकना भूल गई। सफ़ेद शेरवानी में वो मुझे किसी रियासत का शहज़ादा लगा था। ये क्या बदतमीज़ी है बासिम, तुम मेरे रूम में घुस आए हो। मैंने उसे हमेशा की तरह कुछ शर्म दिलानी चाहिए, मगर वो भी बासिम था, सदा का बेशर्म ढीठ बनकर बेड पर बैठ गया। तो क्या करूं बताओ, ये देने आया था। बासिम ने खूबसूरत सा बॉक्स मेरे आगे बढ़ाया, पर मैं इस बॉक्स को लेने का कोई रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए मैंने बॉक्स नहीं लिया। ये क्या है, मेरे सवाल पर बासिम ने सर पीट लिया। कॉकरोच है इसमें, बासिम के जवाब पर बमुश्किल मैंने खुद को चीखने से रोका। निकलो यहाँ से और अपना ये कॉकरोच वाला बॉक्स भी ले जाओ, मैंने गुस्से से कहा। दानीन बात सुनो, मैं मजाक कर रहा हूँ, इसमें कॉकरोच नहीं है, खुद ही देख लो, खुद ही खोल कर देख लो। बासिम ने दोबारा बॉक्स मेरी तरफ बढ़ाया। पक्का ना? वो और इस बार उसकी मासूम सी शक्ल देखकर मैंने वो बॉक्स ले लिया। अब जब रिश्ता जुड़ रहा था तो उस पर यकीन करना फ़र्ज़ था मेरा। मैंने जब बॉक्स खोला तो इसमें एक नहायत ही खूबसूरत नेकलेस था। ये तो बहुत खूबसूरत है, मैं बेसाख्ता बोली और नेकलेस उठाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। वो मुझे ही देख रहा था। ये मेरे लहंगे से मैच भी है। मैं खुशी से चहक उठी और वो नेकलेस पहन लिया। ओफ, ये लड़कियों की मैचिंग, बासिम बड़बड़ाने लगा। वैसे एक और भी चीज़ है। बासिम की बात सुनकर मैं उसके सामने आकर खड़ी हो गई। बासिम मेरे सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया। बासिम मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, दुनिया में मोहब्बत के इजहार के लिए अल्फाज तो देर में तख्लीक पाए। मैंने तुम्हें अंतुल हयात उसी वक्त महसूस कर लिया था जब आलम अरवा में हमारी रूह ने एक दूसरे को बतौर साथी चुना था। वो इतने ख्वाबनाक अंदाज में बोल रहा था कि मैं उसे देखती रह गई। मेरा दिल चाह रहा था वो यूं ही बोलता रहे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। आज मुझे पता चला कि वो मुस्कुराते हुए बहुत दिलकश लगता है। बासिम ने अपनी जेब से गुलाब का फूल निकालकर मेरे सामने पेश किया, जिसे मैंने एक सेकंड की भी ताखीर किए बिना ले लिया। हरीम कमरे में आई तो बासिम कमरे से बाहर चला गया। मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। मौलवी साहब आ चुके थे। हमारे दरमियान मोतिया और गुलाब के फूलों की दीवार सी बनाई गई थी। एक तरफ बासिम बैठा था और एक तरफ मैं बैठी थी। निकाह शुरू होने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ खाला। हाँ बोलो बेटा, अम्मी ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। मुझे कुछ चाहिए, बासिम ने भी उसी लहजे में कहा। मैं तो सोच में पड़ गई। बासिम क्या कहना चाहता है आखिर? आप शादी के बाद मेरे और अम्मी के साथ रहेंगी। वैसे भी कोई तो हो ना जो मेरी साइड ले, बासिम बड़े लाड से बोला। ये अनोखी फरमाइश थी जिसकी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। बेटा मैं अपने दामाद के घर कैसे रह सकती हूँ? अम्मी ने बासिम को समझाना चाहा। बेटे के घर तो रह सकती हैं ना, बासिम ने मुस्कुरा कर पूछा तो अम्मी की आंखें नम हो गई। मेरा बेटा, अम्मी ने बासिम के सर पर हाथ फेरा। बासिम के इस फैसले से आसफा और कुरैश भी खुश हुए। उन्होंने भी दिल ही दिल में उसे सराहा। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। दानीन बिनते अकरम, क्या आपको बासिम कुरैश के साथ ये निकाह कबूल है? कबूल है। मेरे आंखों में खुशी और तशक्कुर के आंसू थे। मैंने बासिम को दिल से कबूल किया था। ज़िंदगी की सारी मुश्किलें जैसे कहीं पीछे छूट गई थी। सारी थकावट बासिम के साथ ने सुकून में बदल डाली थी। ज़िंदगी खुशियाँ लिए हमारे सामने खड़ी थी। बासिम का हाथ थामे मैं ज़िंदगी की खुशियाँ समेटने चल पड़ी थी। अच्छे हमसफ़र का साथ इंसान को मुश्किल रास्ते में भी थकने नहीं देता। इसके साथ ही इस छोटे से खूबसूरत से नावल का इख्तिताम होता है। मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम पढ़ा। थोड़ा हीरो शरारती था, मतलब फ़न बेस्ड ये नावल, फ़नी सा था, अच्छी नोक झोंक थी, लड़ाई थी। मुझे यकीन है आपको ये नावल पसंद आया होगा। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।